Blessed to have him in my life, and this has been an incredible journey. और परमेश्वर के जन मेरे जीवन में दिए हैं, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और ये एक अद्भुत यात्रा रही है. And I think I've already said it earlier as well, but then I will say it again and again that I cannot even imagine my life how it would have been if God has not given me him in my life. मैं कल्पना नहीं कर सकती कि मेरा जीवन कैसा होता अगर परमेश्वर ने इनको मेरे जीवन में ना दिया होता तो. Maybe I would have everything that the world is going after. शायद मेरे पास सब कुछ होता जिसके पीछे दुनिया भाग रही है. But not this. लेकिन ये नहीं होता. And this is where the fulfillment, that this is where, the purpose of God is fulfilled, and this is where you know that God has placed you, and you know that God has called you for a special plan and purpose, and not just an ordinary life. जब आपको पता होता है कि परमेश्वर ने आपको एक योजना के तहत एक मकसद के साथ बुलाया है और आप उस मकसद के बीचों बीच खड़े हैं, सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं लेकिन एक मकसद के अनुसार जीवन जी रहे हैं. I also want to add that, for so many years I was thinking that, okay, Lord, that He's there and He's living for you. But recently God started to, put in my heart that, Monica, that this is not an ordinary life that you're living. I've not called you to have an ordinary life. और बहुत सालों तक मैं ये सोचती थी कि हाँ परमेश्वर ने उनको बुलाया और वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में परमेश्वर मुझसे बात करने लगे कि मोनिका मैंने तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बुलाया है. And I just want to thank God and thank Holy Spirit, how Holy Spirit teaches you, small details, small secrets from the heart of the Father. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ, कैसे वो छोटे छोटे रहस्य सिखाता चला जाता है पिता. How He is leading us and guiding us and maturing us, in the Word of God, and कैसे वो हमारी अगुवाई कर रहा है, हमें चला रहा है, and to be led by the Spirit of God. कि हम उसकी आत्मा के चलाए चल पाएं. And all this that you see here, it's only to be, being led by the Spirit of God. और जो कुछ आप देख रहे हैं उसका कारण है परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना. And I don't even know how, it's just the grace of God. When He said that I wanna, live for God, and I would say yes, God is gonna use you mightily. और जब कभी वो कहते कि मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ, मैं कहती हाँ परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से इस्तेमाल करेंगे, पर मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह ही है. And I had no grid of all this that is happening now. और जो कुछ यहाँ चल रहा है उसकी कोई समझ मुझे नहीं थी. Not even imagined. कल्पना भी नहीं की थी मैंने तो. But I just said yes. पर मैंने हाँ कह दिया. I don't know how. पता नहीं कैसे. But I know that when God would put you with a person that God has given the vision. जब परमेश्वर आपको एक ऐसे जन के साथ रख दे जिसको उसने दर्शन दिया है. Now I can understand this, not at that time. अब मैं समझ सकती हूँ जो हो रहा है, उस समय नहीं समझी थी. He gives you the grace as well. वो आपको अनुग्रह भी देता है उसके लिए. And that is what I had received in my life, the grace upon grace, every day. और यही मैंने अपने जीवन में पाया, हर दिन अनुग्रह पाया है. And everything that we see in our life is just pure grace of God. और जो कुछ अपने जीवन में आप देखते हैं वो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है. And the fruit of the obedience. Fruit of the obedience. और उसकी आज्ञाकारिता के फल को पाया. To the voice of God. परमेश्वर की आवाज को. Yeah. Thank you. Yeah, I think I have a couple of questions and सच का सामना. Yeah, see the thing is we've been doing life for some time, so we have a certain exposure to each other. एक दूसरे को जानते हैं काफी समय से. So but for many of our family members, I want to ask some questions which will help you along your journey. और हमको साथ रहे हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ अपोस्टल अंकित से जो हम सब जिनका उत्तर मिलकर जानेंगे. The first thing I know, one day I sent him a message saying, Bible says, copy those who have been an example of faith for you. और मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था और मैंने पढ़ा कि उनको कॉपी करो, उनकी नकल करो, वो लोग जो परमेश्वर के जैसे हैं. तो I immediately sent him a message saying, thank you sir for being a role model for faith for me. और मैंने जैसे ये पढ़ा उसी समय मैंने अपोस्टल अंकित को मैसेज करा कि धन्यवाद अपोस्टल आपके जीवन के लिए कि आप मेरे लिए विश्वास का एक उदाहरण रहे. But the question I want to ask him for all of you is, who is his hero of faith? लेकिन आप सबके लिए मैं अपोस्टल जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका विश्वास का हीरो कौन है? And why?
और क्यों? हिंदी में बोलता हूँ, सबको समझ में आएगा। आमेन। सो सबको हिंदी, कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ नहीं आती? Anyone who doesn't understand Hindi? हालेलुया। बहुत जल्दी हमारी सर्विस, हिंदी सर्विस होने वाली है सुबह वाली। ओके, सो मेरे विश्वास के एक हीरो नहीं है, बहुत हीरो हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सीखा हूँ, आज भी सीखता हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। सबसे पहले मेरे विश्वास के हीरो हैं प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे रोल मॉडल हैं और उनके जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कैसे जब परमेश्वर और मनुष्य मिल जाए तो क्या क्या संभव हो सकता है। What all is possible जब परमेश्वर और मनुष्य मिल जाए। सो मेरे पहले रोल मॉडल हैं प्रभु यीशु मसीह। दूसरे मेरे रोल मॉडल हैं हमारे विश्वास के पिता अब्राहम, जो बाइबल कहती है there was no hope but he believed against hope। जब कोई आशा भी नहीं थी तब अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर के वचन को थामे रहे वो, जब उन्होंने कुछ भी वो होते भी नहीं देखा। और ये सीक्रेट है, मैं आपको आज एक सीक्रेट बता रहा हूँ। कैन यू इंक्रीज माय वॉल्यूम? मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ विक्टोरियस लाइफ का। परमेश्वर के वचन को पकड़ लो, अगर कुछ नहीं भी दिखता होते हुए उसको पकड़े रहो, उसको छोड़ो मत। बाइबल कहती है रोमियो 4 में कि अब्राहम डगमगाया नहीं अपने विश्वास में, मगर विश्वास में मजबूत होता गया परमेश्वर को महिमा करते हुए। दैट मीन्स व्हेन यू गिव ग्लोरी टू गॉड, जब आप परमेश्वर को लगातार महिमा देते रहते हैं, उसका जो वचन है, आप बोलते रहते हैं प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, जो उसने आपको बोला है 100% होगा यीशु के नाम में। मेरा प्रचार करने का मन कर रहा है तो उठने का मन कर रहा है, मैं रोक रहा हूं अभी अपने आप को। सो दूसरे अब्राहम है। और तीसरे, जब मैं बीमार था, सुसाइडल था, मरने पे था, 19 साल का था जब मैं प्रभु में आया, मगर उसके बाद भी मैं डिप्रेशन में था और वचन मुझे समझ में नहीं आता था। उस टाइम मुझे एक परमेश्वर के दास जिनका नाम केनेथ ई हेगन है, उनकी एक किताब मिली जिसमें उन्होंने विश्वास के बारे में सिखाया। और विश्वास एक आत्मा है, विश्वास का आत्मा सिखाया नहीं जाता, पकड़ा जाता है। आमेन। I cannot teach you the spirit of faith. I can release the spirit of faith and you can catch it. So जब मैं वो बुक पढ़ रहा था, वो विश्वास का आत्मा आ गया मेरे कमरे में और मैंने उसको पकड़ लिया। और जब वो विश्वास के आत्मा को मैंने पकड़ लिया, सो बाइबल एक धार्मिक किताब नहीं रह गई, मगर बाइबल एक मिस्ट्री से भरी हुई, बाइबल एक ब्रेक थ्रू से भरी हुई, विक्ट्री से भरी हुई पुस्तक हो गई मेरे लिए। मैं अपनी बीमारियों से बाहर आने लगा, मैं कर्जों से बाहर आने लगा, डिप्रेशन से बाहर आने लगा, सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर आने लगा। और उसके बाद जब मैंने उनकी किताब पढ़ी, उस टाइम वो प्रभु के पास जा चुके थे, मगर उसके बाद मैं बहुत सारे प्रभु के जनों से मिला, अलग अलग आज जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उनको सबमिट करता हूँ, वो डॉक्टर सैमुअल पट्टा हैं और भी बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ। जब भी मैं किसी भी परमेश्वर के दास से मिलता हूँ, मैं यीशु मसीह का एक एट्रीब्यूट, उनके चरित्र का एक अहम हिस्सा उनके द्वारा चमकता हुआ देखता हूँ। और जब मैं वो एक क्षेत्र देखता हूँ तो मैं उनसे वो सीखना चाहता हूँ। और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि यहाँ मैं केवल अपनी मेहनत या अपनी प्रार्थना, बहुत सारे प्रभु के जन हैं, बहुत प्रभु का अनुग्रह और बहुत सारे प्रभु के लोगों से सीखते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और सीखते रहेंगे आखिरी सांस तक। The day you stop growing
लेट मी से दिस, सैम इसको इंटरप्रेट करना, हिंदी में मुझे मुश्किल हो गया कहना. द डे यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग. जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, आप बढ़ना बंद कर देते हैं. एंड द डे यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट एजिंग. और जिस दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं, आप बूढ़ा होना शुरू कर देते हैं. द डे यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डाइंग. जिस दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं, आप मरना शुरू कर सो देते दैट मीन्स इफ यू कीप लर्निंग हैं. इसका मतलब अगर आप सीखते रहोगे यू विल कीप ग्रोइंग. तो बढ़ते रहोगे. आप 90 साल के हो सकते हैं तो भी आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार सीखते जा रहे हैं. आमीन. और मैं ये भी कहूँगा और बहुत सारे लोगों से, यू नो, हमारे पास्टर से, पास्टर मोनिका से, मेरे बच्चों से, मैं बहुत कुछ सीखा अपने बच्चों से भी, कि पिता को कैसे मैं प्यार कर सकता हूँ. जैसे वो सुबह उठ के आते हैं, सबसे पहले वो हम मुझे ढूंढते हैं, हमें ढूंढते हैं. तो उसने मुझे सिखाया कि सबसे पहले उठ के हमें अपने आत्मिक पिता के पास जाना है, उसकी खोज करनी है. सो बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने बच्चों से भी सीखने को मिली. सो सर, वन क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू. आप दोनों से मैं सवाल करना चाहूँगा. व्हाट इज़ दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यू टू यू एज अ फैमिली, जिस पर कोई भी मोल भाव नहीं हो सकता? अनकॉम्प्रोमाइजेबल कोर वैल्यू आपके परिवार की. आप जवाब दीजिए इसका. सबसे पहली कोर वैल्यू तो यही है दैट लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट. सबसे पहले जो हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, जैसे वो छोटे हैं, सबसे पहला परमेश्वर को प्यार करो. एंड उसके बाद लव पीपल, वैल्यू पीपल, लव पीपल. वैल्यूज तो बहुत सारी हैं जो अपोस्टल ने हमें सिखाई हैं, टू वॉक इन इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, लव, एंड एज द बाइबल ऑल्सो टीचेस द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट. बट सबसे पहली है परमेश्वर से अपने पूरे दिल से प्यार करो. I would say again, for me, number one thing which is very close to my heart is humility, नम्रता. क्योंकि नम्रता धीरे बोलना नहीं है. जय मसीह की, ये नम्रता नहीं है. कई बार वो सबसे खतरनाक लोग होते हैं जो बहुत नम्रता इज योर एबिलिटी टू बी टीचेबल, कि आप सीखने वाले हो सकते हैं. यू हैव अ हार्ट टू लर्न. एंड अगर हम ह्यूमिलिटी में चलेंगे, कभी हम गलत भी जाएंगे, क्योंकि जाएंगे, अगर हम गलत भी जा रहे हो तो परमेश्वर आराध से हमें सही मार्ग में ले आएगा. सो आई थिंक ह्यूमिलिटी इज क्लोज टू माई हार्ट. पास्टर सैम मुझे बार बार पोक कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछो. मेरे पास एक सवाल पास्टर राम के लिए भी है, वो पर्सनली पूछना होगा मुझे. So when you look 10 years back, when all it started, जब आप 10 साल पीछे देखते, जब सब कुछ शुरू हुआ था, and you always say that you guys have no idea what God is going to do. और आप कहते हैं कि आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि परमेश्वर क्या करने वाला है. So sometimes it's get really tricky for us. तो हमारे लिए कई बार बहुत ही असमंजस में डालने वाली बात होती है. That means that we are unprepared for that matter. इसका ये मतलब होता है कि हम तैयार नहीं है जो होने वाला है उसके लिए. So I want to ask in front of close to 3,000 people right now. तो मैं लगभग 3,000 लोग के सामने ये सवाल करना चाहता हूँ. When Faith Arena 3.0 gonna come? Faith Arena 3.0 कब होगा? The answer is in the book of Revelation. इसका उत्तर प्रकाशित वाक्य की किताब में है. It is coming soon. जल्दी आ रहा है. Amen. The Father knows. Yes, yes. मगर मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ. I really want to honor today this woman of God. Come on. आप जानते हैं आज आप जो भी हम देख रहे हैं अभी बहुत छोटा है. प्रेज गॉड, हो रहा है बड़ा जल्दी. जो भी हम आज देख रहे हैं, आप स्टेज देखते हैं, आप लाइट देखते हैं,
मगर बहुत कम लोग हैं who have seen her sacrifices. बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उनका बलिदान देखा है। जब हमारी शादी हुई हमें हार्डली अपने लिए टाइम मिला, क्योंकि मैं जॉब करता था, और जब सैटरडे संडे होता था हमारे घर पे हमेशा यंग लोग होते थे, क्योंकि मैं उन्हें वचन सिखा रहा होता था, उनके लिए प्रार्थना कर रहा होता, उनके लिए पवित्र आत्मा, और वो हमेशा किचन में सबके लिए, कभी 20 लोग कभी 30 लोग हमारे घर में, और कभी कंप्लेन नहीं किया। और रात रात को मैं बाहर होता था, कई बार पूरी रात मैंने लोगों के घर में उन्हें सुसमाचार सुनाया है। मिनिस्ट्री ऐसे शुरू हुई है, पूरी रात, और वो घर पे अकेली होती थी। सैक्रिफाइस। और 10 साल तक शी डिडंट कम ऑन स्टेज, वो स्टेज में नहीं आई, पीछे से करती रही। मगर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, पिता जो गुप्त में देखता है, पिता गुप्त में देखता है। आमीन। पिता जो गुप्त में देखता है वो आपको ओपनली रिवॉर्ड करेगा। And I'm telling you, you wait and watch when this woman of God rises up. मैं नॉर्वे में था और वो सिखा रही थी वर्ड, और मैंने सुना, मैंने कहा प्रभु, शी इज so much better preacher than me. And no, I mean it. I'll not say anything that I don't mean. और hello. And it was not easy. Lot of betrayals, lot of heartbreaks. आसान नहीं था, बहुत से धोखे, बहुत बार दिल टूटा। Going through financial turmoil. आर्थिक दिक्कतों में से गुजरना। But आप जानते हैं, जब हम लोगों ने डिसाइड किया शादी का, जब मैंने उनसे बोला, मुझे नहीं पता था प्रभु मुझे कहाँ ले जाएगा, दिल्ली ले जाएगा या किसी गांव में ले जाएगा। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर बोलना चाहता हूँ। हमारी शादी की बात चल रही थी उस टाइम। मैंने कहा शायद मैं आपको कभी कंफर्टेबल लाइफ ना दे पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता प्रभु मुझे कहाँ ले जाएगा। मैंने कहा अगर वो बोलेगा गांव जा तो मैं गांव जाऊंगा, अगर वो बोलेगा कस्बा जा तो मैं कस्बा जाऊंगा, जहां वो मुझे भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। और अगर आप तैयार हो मेरे साथ सेवा करने के लिए और ऐसा जीवन जीने के लिए, तब आप हाँ बोलना। एंड दैट टाइम शी सेड यस। उन्होंने तब यस बोला जब कुछ नहीं था, when there was nothing, जब कुछ भी नहीं था। Amen. So yeah. And आप सबको देख के आज मुझे पता क्या लग रहा है, all those things were worth it. It was worth it. All those tears, all those sacrifices, it was worth it. Amen. And yeah, we just love you all. Amen. Amen. Do you have more questions or should I preach? Yeah. Any more questions? Yeah. Do you want more questions? Raptured? Huh? Okay, can you bring the pulpit? All right. Hallelujah. थोड़ा माइक बढ़ाओ भाई, मेरा माइक बढ़ाओ, ऐसे कैसे प्रचार करेंगे? Amen. Hallelujah. Come on, man. You should FOLJ. Amen. You can be seated, please. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। Thank you. But there are many new guests today. पर बहुत से आज अतिथि आए हैं। But the members of this house, you have to show them how you receive the word every Sunday. पर जो इस घर के, इस परिवार के सदस्य हैं, आपको दिखाना होगा कैसे आप वचन ग्रहण करते हैं रविवार को। Are you ready? तैयार हैं? I'm going to talk about a God of humble beginnings. क्योंकि मैं बात करूंगा उस परमेश्वर के बारे में जो
नम्र शुरुआत से शुरू करता है। The Bible says, do not despise humble beginnings. बाइबल कहती है नम्र शुरुआत को हल्का मत समझ। Amen. All of you have dreams. आप सबके सपने हैं, All of you, God has given you promises. परमेश्वर ने आपको वायदे भी दिए हैं। But the thing with the way God works is, लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है। God never gives you a forest, He gives you a seed. वो कभी भी आपको जंगल नहीं देता, आपको बीज देता है। And when you mix faithfulness with that seed has the power to become a mighty forest in Jesus' name. और जब आप उसमें विश्वास योग्यता मिला देते हैं तो उस बीज में क्षमता है एक महान जंगल बन जाने की। Amen. But I'm telling you, there is no one here whom God has not given a seed. पर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके परमेश्वर ने बीज नहीं दिया। But majority people despise seeds लेकिन अधिकतर लोग बीज को तुच्छ देखते हैं because they look ordinary, क्योंकि वो दिखने में साधारण होते हैं, they look so common, वो सामान्य होते हैं, they don't look flashy. Like what you're doing is you are comparing your seed with someone's forest. उसमें कुछ भी ऐसा चमचमाता हुआ नहीं है। आप गलती ये कर रहे हैं कि अपने बीज की तुलना किसी के जंगल से कर रहे हैं।